are the topics, what are the mainly condition we are dealing in this loci and construction वाला part. इसकी बात करने जा रहे हैं. Loci and construction. Okay, bhai. Let's begin. If we talk about loci and construction, so loci and construction itself the combination of two subtopics. First of all, if you talk about this construction wala part, so in construction, you have to construct a geometrical shape. भाई कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में एग्जामिनर आपसे आपसे कहता है कि कंस्ट्रक्ट a geometrical shape. Sir, which sort of geometrical shape? 2D geometrical shape आपसे कंस्ट्रक्ट करवाता है. Geometrical shape, that is 2D geometrical shape examiner आपसे कंस्ट्रक्ट कराता है. Sir, any example of that 2D shape? Yes. Examiner mainly ask you to draw a triangle or a quadrilateral. Triangle or a quadrilateral. Sir, which type of triangle? भाई any type. Equilateral, isosceles, scalene, right? कुछ भी draw कराएगा given dimension के साथ draw कराएगा. Sir, which type of quadrilateral? Any type of quadrilateral. Quadrilateral is a four-sided shape. The triangle or quadrilateral are the main type that examiner asks you to draw. Now, moving towards what is loci? Sir, loci क्या है? अब loci की proper definition सुनते हैं. Loci, what is loci? Loci की proper definition सुनते हैं. Loci refers to loci refers to set of instructions that can satisfy / validate the given condition. The given condition. वही कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर दें, वैलिडेट कर दें. तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन लोसाई. अब सर ये किस तरह की इंस्ट्रक्शन और किस तरह की सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी? तो भाई अगर मैं लोसाई की बात करूं तो देयर आर नंबर ऑफ कंडीशंस और कंस्ट्रक्शनल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कंडीशंस जो लोसाई में आप लोगों ने पढ़नी होती हैं. बट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस आर ओनली 4 कंडीशंस. Are only 4 conditions. So now let's talk about condition of loci. Condition of loci. अच्छा, for like studying loci, all of you must have geometry box. Geometry box लाजमी होना चाहिए. अभी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आई एम कंसिडरिंग आप लोगों के पास ज्योमेट्री बॉक्स हो, लेकिन अगर आज की क्लास में नहीं भी है तो मेक श्योर करो कि नेक्स्ट क्लास तक अरेंज कर लेना. ओके, because this complete topic you must need pencil, ruler, protractor and compass. ये 4 चीजें तो भाई मैंडेटरी है, वाजिब है, होनी चाहिए आपके पास. ओके, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स कंडीशंस ऑफ लोसाई. लोसाई इज एक्चुअली प्लूरल, लोकस इज सिंगुलर जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे होंगे. सो कंडीशन नंबर 1 विल बी लोकस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. Locus from a fixed point. Condition number 2, locus from a fixed line. Condition number 3 and last condition number 4. देखिए, पहले हमने डिस्कस करा लोकस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, तो मतलब एक सिंगुलर पॉइंट की बात हो रही होगी, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट वन सिंगुलर पॉइंट. देन है लोकस फ्रॉम अ फिक्स लाइन, मतलब एक कोई लाइन की बात हो रही होगी जिससे आपने लोकस ड्रॉ करना होगा. अब बात कर रहे हैं कंडीशन नंबर 3, लोकस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट. टू फिक्स्ड पॉइंट. मैं सिर्फ कंडीशन बता रहा हूँ,
इनको कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे. आई एम जस्ट राइटिंग द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडीशंस. लोकस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स. It means that in this condition, you will be having 2 points. And last one, locus from two fixed lines to fixed lines. I simply mean that कि यहाँ पे आपके पास कोई 2 points होंगे. In this, you are having any two given lines. Okay. So how are we going to draw their locus? We will discuss this in detail when we will discuss the condition of locus. Right now, I'm just naming them. Okay. So in today's class, first of all, देखिए बात ये समझें कि topic is loci in construction. Examiner first of all ask you to construct any of the geometrical shape जो उसने given करा हुआ होता है. That is either a triangle, either a quadrilateral. And after drawing that particular shape, examiner asks you to apply the conditions of locus on that. तो जब तक construction नहीं आएगी तब तक condition of locus भी apply नहीं कर सकते. So first of all, in today's class, we will discussing about the construction of these geometrical shape. So now let's begin. How are we going to construct this geometrical shape? And examiner हमसे कैसे construct करवा रहा होता है. Okay भाई, let's begin. Starting with question is simply like this. Examiner ने आपसे कहा construct triangle ABC given that AB length is 8 centimeter, B and C length is 7 centimeter, and AC length is 9 centimeter. Means all of the length for that particular triangle that you are going to draw, examiner has given you all sort of lengths. अब सर कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है. First of all, you are going to draw a line segment like this, the baseline. What's the length of this baseline? You will be using ruler and compass. So obviously the baseline is AB, and this AB is having a length of 8 centimeters. यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई, सिंपल AB लाइन ड्रॉ कर दी. नाउ हाउ आर यू गोइंग टू ड्रॉ दीज टू लाइंस? एनीवन? कैसे ड्रॉ करेंगे भाई? कंपास यूज करके उसकी लेंथ को खोलेंगे. 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर और दोनों को मतलब दोनों उसमें आर्क बना के ज्वाइन कर देंगे. आर्क बना के. अब मुझे ये बताओ भाई, देखो सिंपली अगर मैं बात करूं आपसे, सो दिस इज योर. सर आपने एसी क्यों नहीं लिया बेस, मतलब 9 सेंटीमीटर क्यों नहीं लिया? कोई फर्क नहीं पड़ता. देखो नॉर्मली हम जो ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे होते हैं, एग्जामिनर समटाइम्स आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि कंसिडर ए बी ऐसा बेस, तो भाई ए बी कोई बेस लाइन कंसिडर करना है. समटाइम्स जब एग्जामिनर रिस्ट्रिक्ट नहीं करता तो वी कैन कंसिडर एनी ऑफ द साइड एज बेस. तो वी यूजुअली कंसिडर ए बी ऐसा बेस ताकि आप वहीं से ट्राइंगल ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो. लेकिन अगर एग्जामिनर रिस्ट्रिक्ट करे कि भाई कंसिडर ए बी ऐसा बेस या कंसिडर सेगमेंट ए एंड सी ऐसा बेस, so you have to consider that particular segment as a base. Okay, अभी मैं कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा तो होपफुली क्लियर हो जाएगा. भाई देखो ये आपके पास आ गया एक अदद कंपास एंड दिस इज टिप and this is the point where the pencil is attached. Okay, now you are going to open your compass up till 7 centimeter and put the tip of compass right at B and draw an arc. जो arc आप draw करोगे 7 centimeter वो कुछ इस तरह से draw हो रही होगी. Agree? Now after drawing this arc of 7 centimeter by putting the compass at B, now you are going to open your compass further. और इस दफा आप कितना ओपन कर रहे हो? इस दफा देखो मैं थोड़ा सा और ओपन कर रहा हूँ and this length is now 9 centimeters. 9 centimeters. Now you are going to put the tip of the compass right at A to draw this AC segment, to draw this AC arc. तो AC arc आपने 9 centimeter पे draw करी and that is somewhat like this.
The point where both the arcs meet, the point where both the arcs meet, now you are going to connect them via line. Now you are going to connect them via line. This will be your final triangle ABC. आसान सी बात है, बच्चों वाली बात है, बोले. This will be 7 centimeter. This will be 9 centimeter. Any problem, any confusion? तो मैं आगे बताऊं. Easy है? Okay भाई. Now moving towards further condition. ये साथ साथ आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया है? Because मैं आगे एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड लिखने जा रहा हूँ. Now examiner after drawing this particular triangle ask you one more thing. After drawing this particular triangle, examiner ask you one more thing. Examiner कहता है measure angle A B C. Measure angle A C B. ओके भाई. एग्जामिनर आपसे इन एंगल्स को मेजर करने के लिए कह रहा है. अब मेजर करने के लिए ऑब्वियसली यू विल बी यूजिंग प्रोटेक्टर. स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा मसला, सर प्रोटेक्टर प्लेस कैसे करें. तो पहले कुछ बातें सुन लो. भाई देखो, आपके पास तीन तरह के मेनली एंगल्स होते हैं और तीन तरह की रेंज ऑफ एंगल्स होते हैं. इफ द एंगल lies between the following range, that is 0 till 90, then angle lies between 90 till 180, then the angle lies between 180 to 360 degree. तो भाई ऐसी कंडीशन में फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल. क्यूट एंगल होता है acute angle. This is your obtuse angle range and this is your reflex angle range. So these are the main ranges you use to deal for any of the given condition. तो ये मेनली आपके पास रेंजेस होती हैं कुछ जो आप डील कर रहे होते हैं. तो मुझे एक बात ये बताएं कि नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिनर इज आस्किंग यू फाइंड एंगल ABC. सो यू हैव पुट इट योर प्रोटेक्टर लाइक दिस. ऐसे ही रखोगे ना? यस और नो? मुझे बताओ, तुम ये वाला एंगल मेजर करोगे 1 वाला या 2 वाला एंगल मेजर करोगे? 1 वाला और 2 वाला. Angle is always measured between two lines ना. So obviously you are going to measure this particular angle. Yes or no? मुझे measure करके बता सकते हैं कि what's the value of this particular angle? Anyone? बेटा साथ साथ ड्रॉ करना है. सर आपको पहले बताना चाहिए था कि वो लेकर बैठना है. हमारे पास है ही नहीं चीजें अभी. हाँ मैं ऐसे ही बैठ गई. अच्छा अभी 75 है या 80 है? 75 डिग्री आ रहा होगा एग्जैक्ट. ओके. अच्छा एक बात और सुनिएगा. अगर आप मेजर कर रहे हो, आपका फ्रेंड मेजर कर रहा है, तो देयर विल बी अ माइनर वेरिएशन लेंथ में. अगर मैं लेंथ वाइज बात करूँ, दिस लेंथ वाइज, सो लेंथ में भी 1 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर की प्लस माइनस वेरिएशन चल रही होती है. एंगल में भी 1 डिग्री 2 डिग्री प्लस माइनस वेरिएशन चल रही होती है. सर व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस वेरिएशन? इफ यू आर नॉट हैंडलिंग these geometrical instruments like drawing, like compass or ruler properly, तो और आपकी जो पेंसिल है दैट इज ब्लंट वन, नॉट अ वेरी शार्प वन, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से ये वेरिएशंस हो जाती हैं. तो घबराने की जरूरत नहीं है. इट्स टोटली एक्सेप्टेबल. 1 और 2 मिलीमीटर की वेरिएशन एक्सेप्टेबल रेंज में होती है. तो फाइनली आपने इसको मेजर करा होगा. दिस एंगल कम्स आउट टू बी 75 डिग्रीज. अग्री? मैं सिर्फ आप लोगों को कंपास प्लेस करना सिखा रहा हूँ. आज की क्लास में कंपास और प्रोटेक्टर प्लेस कैसे करते हैं. अभी तो हम डिटेल क्वेश्चंस पे आए नहीं. दिस इज 75 डिग्री. नाउ मूविंग टुवर्ड्स ACB. अगर आप ACB मेजर करना चाहते हो, सो यू आर गोइंग टू प्लेस योर प्रोटेक्टर लाइक दिस. ऐसे प्लेस करोगे एंड यू आर गोइंग टू मेजर दिस पर्टिकुलर एंगल. अग्री? मेजर करें, बताएं क्या आंसर आ रहा है. कोई भी एक मेजर कर ले.
कोई भी एक मेजर 85. कर ले. 85 degrees. Okay. So finally this angle comes out to be 85 degrees. एक बात और सुनिएगा, एग्जामिनर ने जब कहा मेजर तो मेजर करोगे, एग्जामिनर ने कहा जब कैलकुलेट फॉर से, देखना बात सुनना, एग्जामिनर कहता है कैलकुलेट, तो हम 180 में से माइनस कर देंगे 85 प्लस 75 को. अगर एग्जामिनर ने कहा भाई कैलकुलेट करके दिखाओ, जैसे फॉर से ये वाले पार्ट्स थे ही नहीं, आपके पास डायरेक्ट ये पार्ट था कैलकुलेट एंगल ए बी सी, तो अगर वो एग्जामिनर कह रहा है कैलकुलेट एंगल ए बी सी, तो इट मींस बी पे बनने वाले इस एंगल को आप प्रॉपर्ली कैलकुलेट करोगे बाय यूजिंग साइन रूल और कोसाइन रूल, जो आपने फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था. भाई मेजर करोगे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर कहता है कैलकुलेट, सो इट मींस दैट उसने ये स्टार्ट वाले पार्ट्स नहीं दिए, दे डायरेक्टली गिवन यू दिस पार्ट. So in that case, you are going to calculate by using simple sine rule and cosine rule. That's a part of further trigonometry that we are going to revise onwards. Clear हो गया बेटा? पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं? Yes. Okay, right. Moving forward. One more question. एक और question discuss कर लेते हैं. Question is like this, but for this condition, आपको एग्जामिनर ने ऐसे कुछ कहा, draw triangle ABC given that AB length is again 8 centimeter, angle A, B and C is 60 degree and angle B, A, C is 45 degrees. 45 degrees. देखो अब के केस में एग्जामिनर आपको लेंस नहीं दे रहा, एग्जामिनर डायरेक्टली एंगल्स दे रहा है और एक लेंथ गिवन कर रहा है. अच्छा भाई, अगर एक लेंथ गिवन कर रहा है, सो ऑब्वियसली जो लेंथ गिवन होगी उसी को आप बेस कंसीडर करके ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे, एटलीस्ट ड्रॉ करना तो स्टार्ट करोगे ना, कि भाई आपने कंसीडर कर ली कि दिस इज माई बेस लाइन, दिस इज माई बेस लाइन एंड दिस बेस लाइन इज हैविंग लेंथ 8 सेंटीमीटर. सो आपने प्रॉपर्ली लेबल कर दिया कि भाई ये बेस लाइन है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज 8 centimeter. Now what are you going to draw? You are going to draw the angle ABC of 60 degree. भाई ABC 60 degree draw करना है. You are going to place your protractor like this. 60 degree कहाँ तक होगा? ऐसा कुछ एंगल होगा? Yes or no? Agree? This angle must be 60 degree. ऐसा कुछ एंगल होगा, या इधर वाले 60 डिग्री को आप कर रहे होगे, मतलब ये है 1, ये है 2, कौन से 60 डिग्री को यूज कर रहे होगे आप? 2 obviously, second one ना, because angle is always formed between two lines, so you will be using number 2. तो आपने properly draw कर लिया 60 degree and this 60 degree is somewhat up till here. Now I am going to draw it like this. अच्छा, इस लाइन को सर कहाँ तक ड्रॉ करें? कहीं तक भी ड्रॉ कर दो, अभी पता थोड़ी हमें पॉइंट सी कहाँ पे, since we are not aware about कि where our point C is, so इसको जहाँ तक extend कर सकते हो कर दो, no problem. Now second angle BAC is of 45 degree, so obviously now in the following case you are drawing an arc up till 45 degree. प्रोटेक्टर कैसे प्लेस करने वाले हो? ऐसे प्लेस करने वाले हो और यही एंगल होगा 45 डिग्री का, समझ रहे हो? अग्री? यही एंगल होगा आपके पास 45 डिग्री का. तो नाउ यू आर गोइंग टू कनेक्ट दिस line at an angle of 45 degree where both the line meets will be considered as your point C. जहाँ पे जाके दोनों लाइन मीट कर गई, that will be considered as your point C. तो अगर आप चाहो तो आप बाकी पोर्शन ऑफ लाइन को इरेज भी कर सकते हो. इफ यू वांट सो यू कैन इरेज द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ लाइन. सो आपने उसको इरेज कर दिया. So here is finally your triangle ABC as per the required condition. Now what?
नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड, अब देखो एग्जामिनर ने ट्राइंगल तो ड्रॉ करा लिया, प्रीवियस केस में उसने लेंस गिवन की थी तो एंगल मेजर करवाए थे, इस केस में उसने एंगल गिवन करे हुए हैं तो लेंस मेजर करवा लेगा। अब एग्जामिनर क्या कहेगा, एग्जामिनर कहेगा कि भाई मेजर मेजर लेंथ ए बी, बल्कि सॉरी मेजर लेंथ ए सी एंड बी एन सी। इन लेंस को मेजर कर सकते हो प्रॉपर रूलर रख के, यस और नो? इन लेंस को आप लोग अकॉर्डिंगली मेजर कर लेंगे एंड आफ्टर मेजरिंग दीज लेंस पर्टिकुलरली यू कैन नाउ सॉल्व फॉर एनी ऑफ द अननोन जो भी आपको एग्जामिनर कह रहा होगा। एम आई क्लियर? पक्का पक्का क्लियर है? कोई मुश्किल कोई सवाल, एनीथिंग दैट नीड्स टू बी रिपीटेड? बोले। नहीं नहीं नहीं। Okay, okay, that's fine. Now I'm just stopping the recording. I'm just stopping the recording. So finally, here we are.